بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مینا ہے۔ میں شکل و صورت کی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی میری مرضی کے خلاف کروائی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ابھی میری بہت کم عمر تھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ عورت نے شادی ہی کرنی ہوتی ہے اور کرنا کیا ہوتا ہے، اور جب بالآخر شادی ہی کرنی ہے تو وقت کیوں ضائع کیا جائے۔ کم عمر لڑکیوں کو اچھے رشتے مل جاتے ہیں۔ اچھے رشتے سے مراد ان کی یہی تھی کہ میرا شوہر باہر کے ملک میں ہوتا تھا اور وہاں سے اچھے بھلے پیسے بھیجتا تھا۔ گھر میں انہوں نے نوکرانی بھی رکھی ہوئی تھی اور میری ایک نند تھی اور ایک ساس، اس کے علاوہ گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر شکل و صورت کا بھی اچھا انسان تھا۔ میری شادی اس کے ساتھ کروا دی گئی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے شادی کی رات کوئی ایسا ویسا لیکچر نہیں دیا تھا، لیکن اگلی رات یہ ضرور کہا کہ میری بہن کا خیال رکھنا کیونکہ وہ بیمار ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بیماری ہے اس کو؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، اور مجھے واقعی پتہ چل گیا، کیونکہ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے انداز سے ایسے لگنے لگا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہے۔ اس کی عمر تو میرے شوہر سے بھی زیادہ تھی۔ وہ میرے شوہر کی بڑی بہن تھی۔ وہ شادی میں نہیں آئی تھی۔ سب لوگ پوچھ رہے تھے تو میری ساس نے کہا تھا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ وہ اس کو لے کر کیوں نہیں آئی تھی، کیونکہ میری نند نفسیاتی مریضہ تھی، لیکن میری ساس نے اسے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ابھی گھر میں کچھ مہمان تھے۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا اس لڑکی سے بچ کے رہنا۔ وہ میری نند کی بات کر رہی تھی، اس کا نام عروج تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیچاری پاگل ہے، اپنے حواسوں میں نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں تمہیں کچھ کرتے۔ مجھے تو پاگلوں سے بڑا ڈر لگتا تھا، اور میں پہلے بھی یہی سوچ رہی تھی کہ پاگل تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز اٹھا کے آپ کے سر میں مار دیتے ہیں اور پھر تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ کہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ دور دور رہوں گی بس، تو خیر ہی ہوگا۔ مجھے بار بار اس کے سامنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بار بار میں کیوں جاؤں گی؟ لیکن جب سارے مہمان چلے گئے تو میری ساس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرا دل کیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا شوہر تو 2 ہفتے کی چھٹی لے کر آیا ہے، جب تک تمہارا شوہر یہاں پر ہے تم اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھو، اسے وقت دو، ہم تم کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جب وہ چلا جائے گا تو پھر تم نے عروج کی ساری ذمہ داری اٹھانی ہے۔ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے سارے کام نہیں ہوتے، اور اس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کو کسی چھوٹے بچے کی طرح سنبھالنا پڑتا ہے۔ میں کسی نوکر پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اسی لیے تمہیں ہی یہ سب کرنا ہوگا۔ اس گھر کے کاموں کے لیے میں نے نوکرانی رکھی ہوئی ہے، تمہیں صرف کھانا پکانا ہے اور عروج کا خیال رکھنا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں زیادہ کام نہیں ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں کچن سنبھال لوں گی اور بس اپنی زندگی کو آرام سے گزاروں گی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میری ساس مجھے اتنی بھاری ذمہ داری دے رہی تھی۔ اس کی ذمہ داری لینے کا مطلب تھا 24 گھنٹے اس کے آس پاس رہنا، اور 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی اگر اس کا دماغ خراب ہو جاتا تو میرا کیا بنتا۔ میں نے انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک تو میں نئی بہو تھی، اوپر سے اپنی ساس سے تھوڑا سا ڈر بھی رہی تھی، اسی لیے انکار نہیں ہو پایا، بول ہی نہیں پائی۔ سوچا کہ شوہر سے بات کروں گی، 1-2 مہینے برداشت کر لیتی ہوں، اس کے بعد اسے کہوں گی کہ مجھے اس سب سے باہر نکالو، اور میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ عروج دیکھنے میں اچھی شکل کی مالک تھی اور خوبصورت بھی تھی، لیکن اس کی حالت عجیب سی تھی۔ میں نے بھی ایف اے میں 1 سال تک نفسیات پڑھی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے پڑھائی سے ہٹا لیا گیا اور میرا ایف اے پورا ہونے سے پہلے ہی میری شادی کروا دی گئی۔ اس کے مطابق جو باتیں میں نے پڑھی تھیں وہ مجھے عروج میں بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان تب تک پاگل ہوتا ہے جب وہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اسے اپنی بھی فکر نہیں ہوتی۔ آپ کسی ایسے انسان کو پاگل نہیں کہہ سکتے جو ویسے تو پاگلوں والی حرکتیں کرے، لیکن جب اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑے ہوں تو اسے پیسوں کی بہت زیادہ قدر ہو، یا اسے اپنی جان پیاری ہو، وہ قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہو لیکن کسی اور کو مارنے کے لیے تیار رہتا ہو۔
ऐसा इंसान पागल नहीं होता बल्कि पागल बना हुआ होता है। मेरी नंद को भी पैसों के बारे में तो अच्छी तरह पता था। वो मेरी सारी चीज़ों के बारे में मुझसे पूछ रही थी और उसने ये भी कहा कि आपकी अम्मी ने ना अच्छे कपड़े नहीं दिए आपको, बहुत ही हल्के और सस्ते कपड़े दिए हैं। हम लोगों ने आपको इतने महंगे वाले कपड़े दिए हैं, इतने ज़्यादा पैसे लगे हैं हमारे। इस तरह की बातें कर रही थी। अचानक से बच्ची बन जाती थी और अचानक से ही संजीदा मिजाज हो जाती थी। मेरे शौहर ने भी 2 हफ्ते के बाद चले जाना था। वक्त गुजरता जा रहा था और मुझे डर लग रहा था, क्योंकि जैसे ही मेरा शौहर जाता ये जिम्मेदारी मुझ पर आ गिरती। जब मेरा शौहर जाने लगा तो मेरी नंद ने उसे कहा कि आप ऐसे ही चले जाएंगे? भाई मुझे पैसे नहीं देंगे, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। उसने एक ही जुमला बार बार बोलना शुरू कर दिया। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे शौहर को शायद इसकी आदत थी। उसकी जेब में जितने भी पैसे थे उसने सारे निकाल के दे दिए। कम से कम भी 25-30 हज़ार थे। वो कमरे में मुझसे मिलने के लिए आया। उसने कहा कि मैं बस जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। मैंने कहा कि मुझे भी खर्चे के पैसे देते जाएं, मैं पीछे क्या करूँगी। उसने कहा कि हाँ बात तो ठीक है, लेकिन जब उसने अपना पर्स खोला तो उसमें कैश में पैसे नहीं थे। उसने कहा कि मैंने तो सारे पैसे उरूज को दे दिए। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए कोई इंतज़ाम करवा दूंगा, अम्मी से कहना वो तुम्हें पैसे दे देंगी। मैंने कहा मुझे आपसे पैसे चाहिए, अम्मी से पैसे मैं नहीं मांगूंगी, पता नहीं वो मुझे कितने पैसे देंगी, मुझे ज़रूरत है। मेरे शौहर ने कहा कि अभी तो शादी हुई है, ऐसी भी क्या ज़रूरत है, जब मैं वहाँ चला जाऊँगा फिर मुझे मैसेज पर बताना, मैं अलग से तुम्हारे नाम पैसे भिजवा दिया करूँगा। मैंने कहा कि ठीक है। वो मेरी सास को कुछ बता कर गया था। मेरी सास ने मुझे 5,000 का नोट दिया और कहा कि अपने शौहर को तंग मत करो, कुछ भी चाहिए हो मुझे बताना। और अभी तुम्हारे जूते कपड़े सब कुछ तो लिया है, पता नहीं तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है। मुझे पता था कि मुझे 5,000 दे के मेरी सास ने टरखा दिया था, जबकि उनकी बेटी ने मेरे शौहर से खड़े खड़े 30 से 40 हज़ार रुपए निकलवा लिए थे। उसकी उनको कोई परवाह नहीं थी। अब उनको याद आ गया कि मेरा बेटा बड़ी ही मेहनत से पैसे कमाता है और पागल के हाथ में 30 से 40 हज़ार देने का क्या फ़ायदा हो सकता था। वो उन पैसों को कहीं फेंक देती या उनको फाड़ देती तो फिर ना वो किसी के काम के रहते और ना ही उनका कोई इस्तेमाल होता। मेरी सास तो पहले दिन से ही सीधी बात कर देने की आदी थी। आते ही मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। मुझे सारा कुछ समझा दिया कि ये इसकी दवाइयाँ हैं, ये इसके कपड़े हैं, इसको इस टाइम खाना देना है, इसे इन बातों पर गुस्सा आता है। मुझे पूरी लिस्ट बना के दे दी। मतलब मेरा शौहर अगर पीछे नहीं था तो मैं नौकरों की तरह इनके सारे काम करती। मेरी नंद को अजीब सी आदत थी, वो बात करते हुए थप्पड़ मार के बात करती थी और फिर हंस पड़ती थी। उसका हाथ बहुत भारी था, बार बार मुझे थप्पड़ मारती रहती थी। पहले 2-4 दफ़ा तो मुझे भी एहसास हुआ कि जाहिर है मजाक में ही इस तरह कर रही है, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे जानबूझकर थप्पड़ मार रही है। पूरा दिन मैं उसकी खिदमत करती और पूरी रात वो मुझ पर हाथ उठाती रहती थी। मेरी सास ने कहा था कि अकेली कमरे में क्या करोगी, अपनी नंद के साथ ही सो जाया करो, क्योंकि इसको रात को भी कभी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। अकेली कमरे में रहोगी तो शौहर की याद आएगी, इसके साथ रहोगी तो वक्त कट जाएगा। वैसे भी उसने 2 साल से पहले वापस नहीं आना है। मैं अपनी नंद के साथ ही सोने लगी। रात होते ही उसका रवैया कुछ बदल सा जाता, अजीब सी हो जाती थी। एक दिन मुझे कहने लगी कि ये वाला जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने देखा तो उसके हाथ में एक खूबसूरत जोड़ा था, जो मेरा ही था, उन लोगों ने ही मेरे लिए बनाया था। मैंने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, रात के 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ तैयार होके बैठ जाऊँ, क्यों इस टाइम क्यों तैयार हूँ। उसने कहा कि हो जाओ ना तैयार, मैं तुम्हें तैयार हुआ देखना चाहती हूँ। मैंने कहा कि तुम देखकर क्या करोगी, मुझे तैयार नहीं होना। उसने कहा कि तैयार हो जाओ, नहीं तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी। वो इतनी बुरी तरह से चीखती चिल्लाती और रोती थी कि दिल करता था कि इंसान कहे कि जितने पैसे लेने हैं ले लो, लेकिन अपना चिल्लाना बंद करो। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कपड़े बदल के आई तो उसने मुझे कहा कि मेकअप भी करो। मैं मेकअप करके तैयार हो गई।
थोड़ी देर के बाद वो 2 गिलासों में बोतल डाल के लेकर आई और कहने लगी कि चलो आराम से बैठकर पीते हैं। मैं हैरान थी कि रात के 10 बजे इसने मुझे तैयार करवाया बोतल पिलाने के लिए, और रात को बोतल कौन पीता है भला, वो भी सर्दियों की शामों में। जब एक लड़की की शादी होती है उसकी ज़िंदगी वैसे ही अजीब होती है, फिर उसका शौहर उसको छोड़कर चला जाए तो उससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। लेकिन मेरे साथ तो ये सब कुछ भी हो रहा था और मुझे एक पागल औरत का ख्याल भी रखना पड़ रहा था। अगर कल को मुझसे कोई गलती हो जाती तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी सास मुझे माफ़ करती। वो तो बहुत बड़ा वावेला खड़ा कर देती। वो तो अपने कमरे में शाम होती चली जाती और आराम से सो जाती थी। अपनी जिम्मेदारी मुझे थमाकर वो सुकून की नींद सो रही थी और मेरी रातों की नींदें उड़ गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने बोतल पी मुझे अचानक से बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगी। इतनी अच्छी नींद तो मुझे काफ़ी अरसे से नहीं आई थी, क्योंकि शादी की तैयारियां हो रही थीं और जब से शादी हुई थी तब से मैं और मेरा शौहर भी रात को देर तक बातें करते रहते थे। सुबह आँख खुली तो जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं बहुत थकी हुई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। मैंने अपनी सास को कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उन्होंने कहा कि सर दर्द की गोली खा लो, लेकिन आराम का वक्त नहीं है। आज उरूज की तबीयत भी खासी ख़राब है, अजीब सी बातें कर रही है। आज तो उसका ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैंने अपना सर पकड़ लिया कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। अपने शौहर से 1-2 दफ़ा इस बारे में बात की तो उसने कहा कि एक इंसान का ख्याल ही तो रखना है, क्या तुम इतना नहीं कर सकती हो? वैसे भी पीछे अकेली हो, क्या करोगी? अगर मसरूफ़ रहोगी तो तुम्हारा वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। पहले उसने मुझसे प्यार से ये बात की। जब मैंने बार बार उसे शिकायत करना शुरू कर दिया तो उसने भी गुस्सा करना शुरू कर दिया। हमारी न जाने कितनी दफ़ा लड़ाई हो चुकी थी और हमारी लड़ाई हमेशा इसी मौजू पर होती थी। बात यहाँ तक आ जाती थी कि वो कहता था कि अगर नहीं रहना तो चली जाओ यहाँ से। मैं तो हैरान होती थी कि कैसे कोई आदमी इतनी जल्दी आखिरी बात कर सकता है। ऐसा लगता था कि किसी ने उसके ऊपर जादू करवाया हुआ है। जब इंसान परेशान होता है तो वो इसी तरह की बातें सोचता रह जाता है। मेरी सास ने कहा था कि मेरा शौहर 2 साल के बाद आएगा, लेकिन वो 4 महीने के बाद मुझसे मिलने के लिए आया। मेरी सास ने कहा कि क्या ज़रूरत थी आने की, टिकट के पैसे भरने की। तो मेरे शौहर ने कहा कि आप सबकी याद आ रही थी। मेरी नंद पीछे से बोली कि हमारी याद आ रही थी या अपनी बीवी की याद आ रही थी। इस बात पर मेरे शौहर ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन उसने बुरा नहीं मनाया क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था। मैंने अपने शौहर से कहा कि आपकी बहन मुझे तो पागल नहीं लगती। हर बात का इसको पता है, हर चीज़ के बारे में इसको पता है। सिर्फ जब कहीं से किसी फ़ायदे की बात होती है तो वो पागल बन जाती है। मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आया हूँ और तुम मुझे ये सब बातें सुना रही हो। मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा कि माफ़ कर दें, लेकिन मेरे शौहर का रवैया बेहतर हो गया। वो इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आया था। मेरे शौहर ने सबके सामने बैग खोला, क्योंकि सबके लिए तोहफे लेकर आया था। जैसे ही उसने एक लाल कलर का डब्बा निकाला, मैं समझ गई कि वो मेरे लिए सोने का सेट लेकर आया है, क्योंकि मुंह दिखाई में उसने मुझे सिर्फ पैसे दिए थे और कहा था कि सेट बाद में लेकर आऊँगा। वो भी मुस्कुराती हुई आंखों से मेरी तरफ देख रहा था कि अचानक से उस सेट पर मेरी नंद ने झपटा मार लिया और कहा कि ये तो मेरे लिए लाए हैं। खोलकर उसे पहनने भी लगी। कितना प्यारा है, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मुझे पता था कि गई भैंस पानी में, क्योंकि अब उससे कोई चीज़ वापस लेना तो नामुमकिन था। उसको तो दौरा पड़ जाता था। मेरे शौहर ने कहा कि अम्मी, ये सेट तो मैं मीना के लिए लाया था। अभी मेरी शौहर की आधी बात पूरी हुई थी कि मेरी सास ने कहा कि बहन को पसंद आ गया है तो क्या हुआ, बीवी के लिए और ले आना। अब क्या चाहते हो तुम कि मैं उससे वो सेट लूं और वो सारा घर सर पे उठा ले? पागलों की तरह बातें मत करो। पागल वो है, हम लोग पागल नहीं हैं। इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि अस्पताल ले जाना पड़ जाएगा। तुम्हारे सेट के पीछे मैं अपनी बेटी को जलील नहीं करवा सकती हूँ। अगर बीवी से इतना ही प्यार है तो दूसरा सेट ले आना। उसको बहन ने ले लिया तो क्या कयामत आ गई। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि वो सेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था।
پتہ نہیں مجھے اس کے ساتھ کا دوبارہ ملتا کہ نہیں۔ میرا موڈ خراب ہو گیا اور میرے شوہر کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کی ماں اور بہن نے ساری اچھی چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ میں تو ابھی آپ کی زندگی میں آئی ہوں، 1 سال بھی نہیں ہوا ہے، اور آپ تو 8-9 سال سے باہر کے ملک میں رہتے ہیں۔ کیا ان کا دل نہیں بھرا باہر کے ملک کی چیزوں سے، جو ابھی بھی یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں؟ میرے شوہر کی آنکھوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ بھی یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، لیکن اس نے پھر بھی مجھے ڈانٹا، کیونکہ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے گھر والوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کروں یا اس کے گھر والوں کے خلاف ہو جاؤں اور میری زبان کھل جائے۔ اسی لیے اس نے مجھ سے ہی جھگڑا کیا۔ کتنا عجیب تھا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن ہم لوگ جھگڑتے ہی جا رہے تھے اور ہمارے بیچ معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ میں مانتی ہوں کہ میں بھی انا میں آ گئی تھی، اور مرد کے اندر تو ویسے ہی اتنی انا ہوتی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم اسی طرح جھگڑتے رہے اور میرے شوہر انا میں آ کر مجھ سے بالکل ہی دور دور رہا، یہاں تک کہ گھر میں بھی زیادہ رہا ہی نہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ تم سے اچھے تو میرے دوست ہیں، کم سے کم مجھے کوئی ٹینشن تو نہیں دیتے۔ میں نے کہا کہ ہم دونوں کے بیچ ٹینشن کی وجہ آپ کی بہن ہے، آپ امی سے بات کریں اور مجھے اس ذمہ داری سے آزاد کروائیں۔ میں نہیں کر سکتی اس کے کام، مجھ سے نہیں ہوتے ہیں اس کے کام۔ کل کو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو الزام لگا دیں گے مجھ پر اور سارے خاندان کو بتائیں گے۔ اس دن محلے سے کوئی عورت آئی تھی تو اس کو بھی کہہ رہی تھی کہ بہو کو ذمہ داری تو دی ہے، لیکن میری بچی بڑی اداس رہتی ہے۔ اگر اداس رہتی ہے تو خود کیوں نہیں خیال کر لیتی اس کا؟ خود کیا کہیں پر چلی گئی ہیں یا اور کیا مصروفیت ہے ان کی؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم تو اپنی حد سے نکلتی جا رہی ہو، تمہاری زبان تو بہت تیز ہو گئی ہے۔ شوہر سے جھگڑا کر لیا، لیکن کچھ چیزوں کی ضرورت تھی جس کے لیے شوہر سے ہی پیسوں کا مطالبہ کر سکتی تھی۔ مجھے لگا کہ جھگڑا ایک طرف، لیکن اگر پیسے مانگوں گی تو دے دے گا، پھر یہ اس کا فرض ہے۔ لیکن وہ اتنا زیادہ غصے میں تھا، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ جب میں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو کہنے لگا کہ اگر تم میرے اور میرے گھر والوں کے کام نہیں کر سکتی تو تمہیں پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ کیا مجھے صرف کاموں کے لیے لائے ہیں؟ کیا میری یہاں پر نوکری لگ گئی ہے؟ میرا اپنا گھر نہیں ہے، میرا اپنا شوہر نہیں ہے کہ میں اس سے 2-4 پیسے ہی مانگ لوں؟ مجھے بہت برا لگا، اور اس کے بعد میں نے پیسوں کا نام تک نہیں لیا۔ میرا شوہر چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے پھر سے میری نند اور اپنی ماں پر اتنا زیادہ لٹا کر گیا کہ میں حیران تھی۔ اگر اس وقت مجھ سے غصہ تھا تو بعد میں تو بھیج سکتا تھا، لیکن اس کے پاس میرے لیے کبھی بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، صرف اپنی بہن اور اپنی ماں کے لیے ہی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی میری ساس میرے شوہر سے نند کے علاج کی مد میں پتہ نہیں کتنے پیسے لے چکی تھی۔ اتنا تو مجھے بھی پتا تھا کہ نفسیاتی علاج اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا، عام علاج سے مہنگا ہوتا ہے لیکن اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا، اور اگر علاج کروایا جا رہا تھا تو پھر اثر کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اثر تو بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں جب بھی ان کے معاملے میں بولتی میں ہی بری بن جاتی۔ میرا دل نہیں کرتا تھا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کرنے کا، لیکن ایسے لگتا تھا کہ کوئی اس کے کان بھرتا تھا میرے خلاف، تبھی تو وہ فوراً سے ہی آخری بات کر دیتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان ماں بیٹی کے ساتھ رہ کے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ رات ہوتے ہی میری نند مجھ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ عورت نہیں کوئی مرد ہے۔ ایسی باتیں تو صرف کوئی مرد ہی کر سکتا ہے۔ کبھی کہتی تھی کہ مجھے تیار ہو کے دکھاؤ، تو کبھی کہتی تھی کہ آج تو اچھی نہیں لگ رہی، کل زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور کبھی میری شکل اور میرے جسم کے حصوں کی تعریف کرنے بیٹھ جاتی تھی کہ تمہاری آنکھیں تو بڑی پیاری ہیں، لیکن تمہاری بازو تھوڑی پتلی ہوتی تو اور پیاری لگتی۔ میں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی۔ ساری رات وہ جاگتی رہتی تھی اور اسی طرح کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ نوکرانی ہمیشہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ مجھے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پاتی۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑا۔ پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔
मेरी सास फौरन ही खुश हो गई और नर्स को कहा कि मिठाई बांटे, लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा था क्योंकि मेरे शौहर के साथ मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे शौहर ने तो मेरी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखा था। वो तो मेरे पास 5 मिनट भी नहीं बैठा था क्योंकि हम लोग झगड़ा ही करते रहे थे। फिर ये बच्चा किसका था? मेरा दिमाग बुरी तरह घूम रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ये बात किसी को बता नहीं सकती थी कि किसको बताती। कौन था? मेरी सास और मेरी नंद थी। उनको बताने का मतलब था कि आ बैल और मुझे मार, और मैं ये नहीं कर सकती थी। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मेरी परेशानी देखकर नौकरानी ने कहा कि बीबी जी, मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि क्योंकि आपके एक नहीं 3 शौहर हैं। ये सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा कि क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? क्या कह रही हो? तो अब उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। उसने कहा कि जब रात होती है तो आपके कमरे में कोई जाता है और आप बेहोश हो चुकी होती हैं, लेकिन आप तो अपनी नंद के कमरे में होती हैं, तो फिर उस वक्त आपकी नंद कहाँ जाती है? वो मुझसे पूछ रही थी या मुझे बता रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में भी यही सवाल था। मैंने उसे कहा कि क्या वो मेरी मदद करेगी, ये बात मेरे शौहर को बताएगी? तो उसने कहा कि नहीं, आपकी नंद और आपकी सास बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, मैं नहीं बता सकती, कुछ भी नहीं, वो तो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन मैं भी बड़ी चालाक थी। मैंने दोबारा से उसकी ज़ुबान से ये बात निकलवाई और रिकॉर्डिंग कर ली। ये रिकॉर्डिंग मैंने अपने शौहर को भेज दी और ये भी बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो हैरान था क्योंकि ये बच्चा उसका नहीं था। उसे फिर से वापस आना पड़ गया और वापस आकर उसे पता चला कि यहाँ पर क्या होता रहा है। मेरी नंद बिल्कुल भी पागल नहीं थी, बल्कि पागल बनी हुई थी ताकि मेरे शौहर से अपने इलाज के लिए भी पैसे ले सके, और बात बात पर इसी तरह पैसे लेती रहती थी, यहाँ तक कि उसकी शादी भी हो चुकी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग मेरे साथ भी जुल्म कर रहे थे। वो अपने शौहर के साथ मिली हुई थी। वो मुझे अक्सर कोई खाने पीने की चीज़ पिलाती, जिसके बाद मैं गहरी नींद सो जाती। उसके बाद उस घर में उसका शौहर भी आ जाता और ये तीनों बैठ के अजीबो गरीब किस्म के प्लान बनाते रहते थे और मेरी इज्जत का सौदा भी कर चुके थे। उसने जिस इंसान से शादी की थी वो अच्छा इंसान नहीं था, इसीलिए छुप के शादी की थी और उसकी माँ उसके साथ मिली हुई थी, क्योंकि मेरा शौहर उस ख़ानदान का वाहिद कमाने वाला था। उसकी दौलत पर अगर मैं कब्ज़ा कर लेती तो इन सब का क्या होता? ये तो मेरे शौहर की दौलत पर ही पल रहे थे। मेरी नंद का शौहर भी कुछ नहीं करता था, बल्कि वो एक निहायत ही बुरी आदत और बुरी नीयत वाला आदमी था। उसी ने इन लोगों को ये सारे मशवरे दिए थे। यहाँ तक भी पता चला था कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी और उसने कई लड़कियों को धोखा दिया था। मेरी नंद भी ये बात जानती थी, लेकिन फिर भी उसके इश्क में पागल थी। और मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में इन सब लोगों का हाथ था। मेरे शौहर की आंखों के सामने सब कुछ आ चुका था। किस्मत से जो बच्चा मेरी गोद में था वो इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। शायद यही हम सब के लिए बेहतर था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चा आपके पास नहीं है क्योंकि आपका जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मेरे शौहर ने मेरी सास और नंद से बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, उनको उनकी औकात याद दिलाई और कहा कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं अपनी इज्जत तुम लोगों के सहारे छोड़ के जाता रहा और तुम लोगों ने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। मैं भी बहुत सदमे में थी, कुछ बोलना नहीं चाहती थी, बस मर जाना चाहती थी। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी और उसने कहा कि ऐसा सोचना भी मत। उसके बाद वो मुझे भी अपने साथ ले गया। मुझे बाहर के मुल्क आए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन मैं पहले जैसी नहीं हूँ। मैं नॉर्मल नहीं रही, मैं अजीब सी हो गई हूँ। मुझे वो सब कुछ याद आता है, ख्वाब आते हैं बुरे बुरे। हमेशा परेशान रहती हूँ और अभी तक अल्लाह ने हमें औलाद भी नहीं दी है। बस ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि इंसान का पता ही नहीं चलता कि वो कैसा है। लोग कहते हैं कि जब आप किसी के साथ रहते हैं तो तब ही पता चलता है,
लेकिन कभी कभी साथ रहने से भी पता नहीं चलता। मेरा शौहर भी पहले जैसा नहीं है। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, हमेशा झगड़े करता रहा, रोज़ अम्मी का फ़ोन आता था, रोज़ तुम्हारे खिलाफ बातें सुनता था, परेशान हो जाता था। उन्होंने मिलकर हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। वो लोग अभी भी पाकिस्तान में ही रहते हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें नहीं पता, ना हम उनसे कभी पूछते हैं। उनको मेरे शौहर ने घर दे दिया है, कहा कि ये घर भी आप रख लें और यहाँ पर एक दुकान थी वो भी आप रख लें। लेकिन मुझसे आज के बाद आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम लोग सब कुछ ख़त्म करके यहाँ आ तो गए हैं, पर हमारे अंदर का दुख अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और पता नहीं कब ख़त्म होगा। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।